Good evening, students. Today we are going to discuss about osteoarthritis. So, osteo word means bone, earth means joints, and itis word means inflammation. So, osteoarthritis means inflammation of the bone joint cartilage. ठीक है. सो osteoarthritis ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, joints ਦੀ inflammation ਹੁੰਦੀ ਹੈ. ਠੀਕ ਹੈ. ਔਰ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਏਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਥੇ ਬੋਨ ਜੁਆਇੰਟਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬੋਨਸ ਜਿੱਥੇ ਗਲਾਈਡ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਬੋਨਸ ਨੂੰ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰੀਵੈਂਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਉੱਥੇ ਬੋਨ ਨੂੰ ਕਾਰਟਿਲੇਜ ਬੋਨ ਨੂੰ ਸਰਾਊਂਡ ਕਰਦਾ. ਠੀਕ ਹੈ. ਉਹ ਕਾਰਟਿਲੇਜ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਬੋਨ ਦੀ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਵੈਂਟ ਕਰਦਾ. ਠੀਕ ਹੈ. ਸੋ osteoarthritis ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੋਨ ਜੁਆਇੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਟਿਲੇਜ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਇਨਫਲਾਮੇਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ. ਤਾਂ ਇਨਫਲਾਮੇਸ਼ਨ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਟਿਲੇਜ ਆ ਉਹਦੀ ਬ੍ਰੇਕਡਾਊਨ ਹੋ ਜਾਏਗੀ. ਔਰ ਬ੍ਰੇਕਡਾਊਨ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕਾਰਟਿਲੇਜ ਦੀ ਕੀ ਹੋਏਗੀ, ਬੋਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਏਗੀ. ਜਦੋਂ ਬੋਨ ਗਲਾਈਡ ਕਰੇਗੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਬੋਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁਆਇੰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ ਬੋਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ. ਠੀਕ ਹੈ. ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਵੀਅਰਿੰਗ ਟੀਅਰਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਏਗੀ. ठीक है. सो osteoarthritis means it is the inflammation of the bone joint cartilage. So according to your book, osteoarthritis, known as degenerative joint disease or osteoarthrosis, is slowly progressive non-inflammatory disorder of the mobile joints, particularly weight bearing articulation. So this is characterized by the loss of articular cartilage in articulating joints and hypertrophy of the bones at the articular margin. The damage from osteoarthritis is confined to the joints and surrounding tissues. So as we seen in the picture, this is the synovial joint. ठीक है. synovial joint ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ 2 bones present ਹੈ. ਠੀਕ ਹੈ. ਸੋ bones ਦੀ ਜਿਹੜੀ outer layer ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, that is periosteum. ਠੀਕ ਹੈ. ਸੋ periosteum ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਵੈਰੀ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਲੇਅਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ. ਠੀਕ ਹੈ. ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਰਵ ਐਂਡਿੰਗਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪੇਨ ਰਿਸੈਪਟਰਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਆ. ਠੀਕ ਹੈ. ਔਰ ਪੈਰੀਓਸਟੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਸਾਈਨੋਵੀਅਲ ਜੁਆਇੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ, 2 bones ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ. ਠੀਕ ਹੈ. ਤਾਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, osteoarthritis ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਪਾਂ ਕੀ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ, osteoarthritis ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਹੜਾ 2 bones ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, 2 bones ਨੂੰ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਸਰਾਊਂਡ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਆਰਟੀਕੂਲਰ ਕਾਰਟਿਲੇਜ. ठीक है. ਬੋਨ ਨੂੰ ਕੀ ਸਰਾਊਂਡ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਆਰਟੀਕੂਲਰ ਕਾਰਟਿਲੇਜ. ਦੋਨੋਂ ਬੋਨਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈ, ਆਰਟੀਕੂਲਰ ਕਾਰਟਿਲੇਜ. ਤਾਂ ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਜਦੋਂ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੋਏਗੀ ਜੁਆਇੰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਜਦੋਂ ਬੋਨਸ ਗਲਾਈਡ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਆਰਟੀਕੂਲਰ ਕਾਰਟਿਲੇਜ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਦੀ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਵੈਂਟ ਕਰਦਾ. ਠੀਕ ਹੈ. ਬਟ osteoarthritis ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਦੋਨੋਂ ਬੋਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਕਾਰਟਿਲੇਜ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਥਿਨ ਹੋ ਗਿਆ. ਠੀਕ ਹੈ. ਕਾਰਟਿਲੇਜ ਦੀ ਬ੍ਰੇਕਡਾਊਨ ਹੋਣੀ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਫਰੈਗਮੈਂਟਸ ਹੋ ਗਏ ਆ. ਠੀਕ ਹੈ. ਸੋ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਬੋਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲਾਈਡਿੰਗ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੋਏਗੀ, ਮੀਨਸ ਡਿਊਰਿੰਗ ਮੂਵਮੈਂਟ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਬੋਨਸ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰੇਗੀ, ਟਕਰਾਏਗੀ. ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਬੋਨਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਵੀਅਰਿੰਗ ਟੀਅਰਿੰਗ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਏਗੀ. ਠੀਕ ਹੈ. ਕਾਰਟਿਲੇਜ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਡੈਮੇਜ ਹੋ ਗਿਆ. ਕਾਰਟਿਲੇਜ ਡੈਮੇਜ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਬੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਏਗੀ. ਠੀਕ ਹੈ. ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਡਿਊਰਿੰਗ ਮੂਵਮੈਂਟ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਬੋਨ 'ਚ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੋਨ ਦੀ ਵੀਅਰਿੰਗ ਟੀਅਰਿੰਗ ਹੋਏਗੀ. ਠੀਕ ਹੈ. ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪੈਰੀਓਸਟੀਅਮ ਲੇਅਰ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਆਊਟਰ ਲੇਅਰ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹੀ ਲੇਅਰ ਕੀ ਹੋਏਗੀ, ਉਹਦੀ ਵੀਅਰਿੰਗ ਟੀਅਰਿੰਗ ਹੋਏਗੀ. ਠੀਕ ਹੈ. ਬ੍ਰੇਕਡਾਊਨ ਹੋਏਗੀ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹ ਵੀਅਰਿੰਗ ਮੀਨਸ ਬ੍ਰੇਕਡਾਊਨ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪੈਰੀਓਸਟੀਅਮ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਰਵ ਐਂਡਿੰਗ ਨੇ ਪੇਨਫੁਲ ਸਟਿਮੂਲਾਈ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਗੇ ਬੇਨ ਨੂੰ. ਠੀਕ ਹੈ. ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਏਗੀ, ਪੇਨਫੁਲ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ osteoarthritis ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੋਏਗੀ. ਠੀਕ ਹੈ. ਸੋ osteoarthritis ਕੀ ਆ, it is the inflammation of the bone joint cartilage. So next आ गया, osteoarthritis is caused by breakdown of the cartilage that surrounds and protects the end of the bones in the hip joint. This is leading cause of the pain and disability in the elderly person. Weight bearing joints, hip and knees, hands, the vertebral column are the most
ऑफन अफैक्टेड। ठीक है, सो हुण इहदे विच की होएगा अपने कोल साइनोवियल जॉइंट। ठीक है, साइनोवियल जॉइंट मेनली अपने कोल मूवमेंट्स कित्थे होंदियां ने, लाइक अपने हैंड्स के जॉइंट्स हो गए। ठीक है, फ्लेंजिस के जॉइंट्स हो गए, नी जॉइंट हो गया, हिप जॉइंट हो गया, एल्बो जॉइंट हो गया। मोस्टली कि अपने कोल ਜਿਹੜੇ ਜॉइंट्स ਦੇ ਵਿੱਚ मूवमेंट ज़्यादा ਹੁੰਦੀ है। ठीक है, ਤਾਂ ऑस्टियोआर्थराइटिस ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਵਾਲੇ ਜॉइंट्स ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਕਾਰਟਿਲੇਜ ਦੀ ਇਨਫਲੇਮੇਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਠੀਕ है, ਤਾਂ ਇਹ ਵਾਲੇ ਜॉइंट्स ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ऑस्टियोआर्थराइटिस ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੋਏਗੀ। ਨੈਕਸਟ ਆ ਗਿਆ टाइप्स ऑफ ऑस्टियोआर्थराइटिस। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ऑस्टियोआर्थराइटिस, प्राइमरी ऑस्टियोआर्थराइटिस एंड सेकेंडरी ऑस्टियोआर्थराइटिस। ठीक है, दैन इन्ना तो सारिਆਂ ਨੂੰ क्लीयर है कि प्राइमरी ऑस्टियोआर्थराइटिस की होएगा कि जड़ा परसन दे विच स्टार्ट हो रहा ड्यू टू हैरिडिटरी ओबेसिटी कंडीशनस करके। ठीक हो गया, ਜਾਂ कोई माइनर ट्रॉमा हो गया। ठीक है, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ऑस्टियोआर्थराइटिस की कंडीशन ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈ। ਸੈਕੰਡਰੀ ऑस्टियोआर्थराइटिस ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਏਗਾ कि प्रीवियस कोई जॉइंट इन्फ्लामेशन हो गई है, ਜਾਂ कोई जॉइंट इंजरी हो गई है। ठीक है, कोई फ्रैक्चर की कंडीशन हैगी आ, उस कंडीशन तो की हो रहा अपने कोल इन्फ्लामेशन हो रही है, जिमें प्रीवियस कोई जॉइंट फ्रैक्चर होया। ठीक है, वो की होएगा बोन इन्फ्लामेशन होएगी, तो वो इन्फ्लामेशन करके की हो रहा। ठीक है, अपने को ऑस्टियोआर्थराइटिस की कंडीशन जी हैगी वो अराइज हो रही है। ठीक है, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ऑस्टियोआर्थराइटिस, प्राइमरी ऑस्टियोआर्थराइटिस एंड सेकेंडरी ऑस्टियोआर्थराइटिस। ठीक है, सो हुण आपां नैक्सट डिस्कस करते हैं, थोड़ी जी अनाटमी इहदी डिस्कस कर लैंदे। ठीक है, ऑस्टियोआर्थराइटिस दे विच की हुंदा। ठीक है, आपां डिस्कस किया सी पहलां भी 2 बोन्स प्रेजेंट है। ठीक है, इत्थे की अपने कोल आर्टिकुलर कार्टिलेज प्रेजेंट है। ठीक है, हुण आर्टिकुलर कार्टिलेज प्रेजेंट है। ठीक है, और ये अपने कोल की आ गया इन बिटवीन साइनोवियल स्पेस आ गई है। ठीक है, सो हुण आर्टिकुलर कार्टिलेज और साइनोवियम की करदा, ये जो बोन्स दे विच ग्लाइडिंग होएगी ड्यूरिंग मूवमेंट। ठीक है, इन्हें की होना, बोन नू फ्रिक्शनस तो प्रिवेंट करना। ठीक है, और ब्रेक डाउन नहीं होने देगा। ठीक है, साइनोवियम प्लस आर्टिकुलर कार्टिलेज। ठीक है, दोनों ही की कर रहे हैं, इनर लाइनिंग ऑफ द जॉइंट सरफेस। ठीक है, तो ये जी इनर लाइनिंग बन रही है जॉइंट सरफेस की, इन्हें की करना, लुब्रीकेशन प्रोवाइड करनी है बोन नू। ठीक है, और ये की होएगा, जोड़ा बोन दे जोड़ा वेट आएगा। ठीक है, बोन तो उन्होंने इक्वली बोन दे डिस्ट्रीब्यूट कर देंदा, फ्रिक्शन नू प्रिवेंट करेगा। ठीक है, ब्रेक डाउन नहीं होने देगा बोन की, लुब्रीकेशन प्रोवाइड करेगा। ठीक है, सो साइनोवियम बेसिकली जोड़ा साइनोवियम हुंदा, इट कंटेन्स द small connective tissue, blood vessels, lymphatic vessels, टाइप ए सैल्स। ठीक है, टाइप ए सैल्स का फंक्शन की हुंदा साइनोवियम दे विच, टाइप जो भी उहदे विच सैल डैब्रिज वगैरह प्रेजेंट होंदी उन्होंने की करना, उन्हें क्लीयर करना। ठीक है, साइनोवियम दे विचों टाइप बी सैल्स की करते हैं, ये साइनोवियम फ्लूइड नू प्रोड्यूस करते हैं, विच हैल्प इन द लुब्रीकेशन। सो टाइप ए सैल्स की करते हैं, डैब्रिज नू क्लीयर करते हैं। टाइप बी सैल्स की करते हैं, साइनोवियल फ्लूइड प्रोड्यूस करते हैं, विच हैल्प इन द लुब्रीकेशन। ठीक है, दिस इज द फंक्शन ऑफ द साइनोवियम। So till now we have discussed about साइनोवियल जॉइंट कंटेन द आर्टिकुलर कार्टिलेज प्लस साइनोवियम। ठीक है, दोनों मिलके की बनाने, इनर लाइनिंग ऑफ द जॉइंट स्पेस। ठीक है, सो इत्थे अपने कोल की हो गया साइनोवियम की कंटेन करता, इट कंटेन्स सम स्मॉल कनेक्टिव टिश्यूज, ब्लड वैसल्स, लिम्फेटिक वैसल्स, टाइप ए सैल्स। ठीक है, टाइप ए सैल्स का फंक्शन की होंगे, डैब्रिज नू उन्होंने क्लीयर करना साइनोवियम दे विचों। ठीक है, नैक्सट आ गया टाइप बी सैल्स की करते हैं, साइनोवियल फ्लूइड प्रोड्यूस करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, डैट प्रोड्यूस द साइनोवियल फ्लूइड विच हेल्प इन द लुब्रिकेशन ऑफ द बोन। दिस इज द नॉर्मल अनाटमी ऑफ द साइनोवियल जॉइंट। ठीक है, सो हेयर इज प्रोग्रेसिव लॉस ऑफ द आर्टिकुलर कार्टिलेज। ठीक है, तो हुण की होएगा, जो आर्टिकुलर कार्टिलेज का लॉस होना स्टार्ट हो गया। ठीक है, ब्रेकेज होनी स्टार्ट हो गया, तो वो की होएगा, बोन्स दे इन बिटवीन की होएगा, जी फ्रिक्शन आ वो इंक्रीज़ हो जाएगी। बोन फ्रिक्शन इंक्रीज़ होने की होएगा, जी इन्फ्लामेटरी प्रोसैस हैगी वो इंक्रीज़ हो जाएगी, इन्फ्लामेशन इंक्रीज़ हो जाएगी। इन्फ्लामेशनस ने की करना, ठीक है, जो हुण फ्रिक्शन होएगी, बोन की ब्रेकडाउन होनी स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, ब्रेन की आउटर लेयर दे विच आपां की किया सी, पेन रिसेप्टर्स पे हैं। ठीक है, सो डैट ट्रिगर्स द पेन टू द नर्व एंडिंग्स। ठीक है, उहदे नाल की होएगा, जी पेनफुल कंडीशन हैगी आ ऑस्टियोआर्थराइटिस दे विच प्रेजेंट होएगी। सो ऑस्टियोआर्थराइटिस इज द बेसिकली इन्फ्लामेशन ऑफ द बोन जॉइंट कार्टिलेज। ठीक है, और
ਬੋਨ ਜੁਆਇੰਟ ਕਾਰਟਿਲੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਨੋਵੀਅਲ ਮੇਨ ਬੇਸਿਕਲੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ, ਆਰਟੀਕੂਲਰ ਕਾਰਟਿਲੇਜ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਾਨੋਵੀਅਲ ਫਲੂਇਡ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਕੀ ਕਰੇਗਾ, ਲੁਬਰੀਕੇਸ਼ਨ 'ਚ ਹੈਲਪ ਕਰਦਾ, ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਵੈਂਟ ਕਰੇਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਟ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਆਰਟੀਕੂਲਰ ਕਾਰਟਿਲੇਜ ਦੀ ਡੈਮੇਜ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕੀ ਹੋਏਗੀ, ਦੋਨੋਂ ਬੋਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਏਗੀ, ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਨਫਲਾਮੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਪੇਨ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਹੋਣੀ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਪੇਨਫੁਲ ਜੁਆਇੰਟਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੋਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ठीक है। सो प्रोग्रेसिव लॉस होने करके की होया अपने को ऑस्टियोआर्थराइटिस दे जी पेनफुल कंडीशन होती है वो होनी स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। हुण जिहड़े आर्टिकुलर कार्टिलेज है, ठीक है, आर्टिकुलर कार्टिलेज नूं कौन प्रोड्यूस करता, मीनस कौन मेनटेन करता, कॉन्ड्रोसाइट्स। कॉन्ड्रोसाइट्स की करते हैं नॉर्मली प्रोसैस के विच की होएगा, आर्टिकुलर कार्टिलेज नूं मेनटेन करते हैं, ठीक है, मेनटेन कार्टिलेज कॉन्ड्रोसाइट सैल्स, ठीक है। सो कॉन्ड्रोसाइट्स दे नाल अपने कोल की प्रेजेंट हुंदा, एक्स्ट्रा सैलूलर मैट्रिक्स प्रेजेंट हुंदी है, ठीक है। जिथे अपने कोल कॉन्ड्रोसाइट्स प्रेजेंट ने, ठीक है, उन्होंं सराउंड की करता है एक्स्ट्रा सैलूलर मैट्रिक्स, ठीक है। सो एक्स्ट्रा सैलूलर मैट्रिक कंटेन्स टाइप 2 कोलेजन्स, टाइप 2 कोलेजन्स। सो बेसिकली कार्टिलेज नूं कौन प्रोड्यूस करता, मेनटेन करता, कार्टिलेज, ठीक है। सो कार्टिलेज नूं की सराउंड करता, एक्स्ट्रा सैलूलर मैट्रिक्स। एक्स्ट्रा सैलूलर मैट्रिक्स कंटेन टाइप 2 कोलेजन, ठीक है। टाइप 2 कोलेजन का फंक्शन की हुंदा, विच प्रोवाइड द स्ट्रक्चरल सपोर्ट टू द बोन, ठीक है। एक तो एक्स्ट्रा मैट्रिक्स के विच टाइप 2 कोलेजन प्रेजेंट है, दूसरा की प्रेजेंट हुंदा उत्थे प्रोटियोग्लाइकेन्स प्रेजेंट होंगे, ठीक है। सो प्रोटियोग्लाइकेन्स की करते हैं, बेसिकली प्रोटियोग्लाइकेन्स होंगे जिहड़े वो प्रोटीन्स शुगर के अपने कोल बने होंगे हैं, ठीक है। सो प्रोटीन ग्लाइकोकेन्स इट कंटेन्स द हाइलोयूरिक एसिड, ठीक है, बेसिकली मेडअप ऑफ कॉन्ड्रोटीन सल्फेट एंड कैरेटीन सल्फेट, ठीक है। प्रोटियोग्लाइकेन्स की प्रेजेंट होंगे अपने को हाइलोयूरिक एसिड, ठीक है। हाइलोयूरिक एसिड की जिहड़े कंपोनेंट्स का बनया होंगे कॉन्ड्रोटीन सल्फेट एंड कैरेटीन सल्फेट नाल, ठीक है। हुण टाइप 2 कोलेजन और प्रोटियोग्लाइकेन्स का मेन फंक्शन की हुंदा, इट प्रोवाइड्स द इलास्टिसिटी एंड हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ टू द बोन, ठीक है। कॉन्ड्रियोसाइट्स कार्टिलेज मेनटेन करते हैं, ठीक है, और कॉन्ड्रोसाइट्स किस चीज़ के नाल सराउंड होए होने, एक्स्ट्रा सैलूलर मैट्रिक्स। इट कंटेन्स टाइप 2 कोलेजन एंड प्रोटियोग्लाइकेन्स, ठीक है। इन्हां दा फंक्शन की हुंदा, इट प्रोवाइड द स्ट्रक्चरल सपोर्ट टू द बोन एंड प्रोवाइड द इलास्टिसिटी एंड हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ टू द बोन, ठीक है। इहदे नाल की होएगा, जिहड़ी बोन हुंदी आ वो बोन दे विच की होएगा, that help to the bone to wearing the weight and help to distribute the weight in overall the bone, ठीक है। मीनस ये जी हूँ ये सारी प्रोसैस है, ये की होएगा, जॉइंट है जोड़े वो कैपेबल होंगे आ शॉक अब्जॉर्ब करन दे, ठीक है, वेट बीयर करन दे, ठीक है। तो वो की होएगा, जो भी वेट आ रहा बोन्स से वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा बोन्स दे विच, और बोन्स नूं वो लाइट रखेगा, ठीक है। दिस इज़ द नॉर्मल प्रोसैस इन द नॉर्मल प्रोसैस ऑफ द बोन्स, ठीक है। सो नैक्सट अपने को की आ जाएगा, हुण नॉर्मल प्रोसैस दे विच की होएगा, जिहड़े कॉन्ड्रोसाइट्स ने, ठीक है, कॉन्ड्रोसाइट्स अपने को बॉडी दे विच की करते हैं, कार्टिलेज का एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, ठीक है, कार्टिलेज नूं मेनटेन करते हैं कॉन्ड्रोसाइट्स। हुण इहदे विच की होएगा, अपने को 2 एक्टिविटीज़ होंदियां, कैटाबॉलिक एक्टिविटी और एनाबॉलिक एक्टिविटी, ठीक है। कैटाबॉलिक एक्टिविटी मीनस ब्रेक डाउन होएगी कार्टिलेज की, मीनस जिहड़ा अपने कोल ओल्ड कार्टिलेज है, ठीक है, ओल्ड कार्टिलेज जदों कार्टिलेज जिहड़ा हैगा ओल्ड हो गया, कैटाबॉलिक एक्टिविटी के नाल की होएगा, ओल्ड कार्टिलेज जिहड़ा हुंदा वो रिमूव हो जाता, ब्रेक हो जाता, और उहदी जगह न्यू कार्टिलेज जिहड़ा हुंदा वो रिप्लेस हो जाता, प्रोड्यूस कार्टिलेज इन द एनाबॉलिक एक्टिविटी, ठीक है। इस एक्टिविटी दे विच की होएगा, न्यू कार्टिलेज प्रोड्यूस होएगा, मीनस नॉर्मल प्रोसैस दे विच जिहड़ी ये चीज़ है अपने कोल बैलेंस रहेगी, ठीक है, इक्वल लाइन दे विच न्यू कार्टिलेज प्रोड्यूस होंदा रहिंदा, पुराना कार्टिलेज जिहड़ा हुंदा कैटाबॉलिक एक्टिविटी के थ्रू अपने कोल रिप्लेस हो जाता, ठीक है। हुण
ऑस्टियोआर्थराइटिस की कंडीशन दे विच की होएगा जिहड़ा ये बैलेंस है कैटाबॉलिक एक्टिविटी और एनाबॉलिक एक्टिविटी का वो की हो जाएगा इंबैलेंस हो जाएगा। ठीक है, हुण इहदे विच की होएगी एनाबॉलिक एक्टिविटी जिहड़ी हैगी आ वो डिक्रीज़ हो जाएगी। मीन सिंथैटिक इंजाइम्स ने जिहड़े कॉन्ड्रोसाइट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, सिंथैटिक इंजाइम्स की हो गया रिड्यूस हो गया, इहदे कंपैरेटिवली की हो गया डीजनरेटिव इंजाइम्स जिहड़े हैगे वो इंक्रीज़ हो गए। मीनस कैटाबॉलिक एक्टिविटी इंक्रीज़ हो गई है, एनाबॉलिक एक्टिविटी डिक्रीज़ हो गई। न्यू सैल्स जिहड़े हैगे कॉन्ड्रोसाइट्स वो लैस प्रोड्यूस हो रहे हैं और वो कंपैरेटिवली जो डीजनरेटिव प्रोसैस हो गया वो इंक्रीज़ हो गया। तो मीनस कार्टिलेज जोड़ा है ओल्ड कार्टिलेज आ वो न्यू कार्टिलेज के नाल की होएगा रिप्लेस होना बंद हो जाएगा। ठीक है, मीनस जो हम कार्टिलेज नहीं इत्थे न्यू कार्टिलेज नहीं फॉर्म होएगा। ठीक है, आप इत्थे की डिस्कस किया सी हुण जिहड़ा ये आर्टिकुलर कार्टिलेज है ये की करदा फ्रिक्शन नूं प्रिवेंट करदा। ठीक है, हुण जो कार्टिलेज दी जिहड़ी कैटाबॉलिक एक्टिविटी दे विच की होया डीजनरेशन होनी स्टार्ट हो गया, ब्रेकडाउन होनी स्टार्ट हो गई है, न्यू कार्टिलेज प्रोड्यूस नहीं हो रहा, तो इहदे नाल की होएगी बोन दे विच जिहड़ी फ्रिक्शन हैगी आ वो इनक्रीज़ हो जाएगी। ठीक है, दिस इज़ ऑल अबाउट द नॉर्मल प्रोसैस। ठीक है, सो नैक्सट अपने कोल की आ गया रिस्क फैक्टर। रिस्क फैक्टर ऑलरेडी आप डिस्कस कर चुके हैं बुक चो। ठीक है, सो फर्स्ट रिस्क फैक्टर आप डिस्कस किया सी एज। ठीक है, जिवें जिवें एज इनक्रीज़ होएगी, ठीक है, उवें उवें की होएगा ऑस्टियोआर्थराइटिस के चांसिस जिहड़े हैगे आ वो इनक्रीज़ हो जाने। इन्फ्लामेशन, अगर बोन्स कोई इन्फ्लामेशन आ, कोई प्रीवियस इंजरी है, ठीक है, वो करके इन्फ्लामेशन हो रही है। ठीक है, इन्फ्लामेशन के होएगा इंटरल्यूकिन 1, इंटरल्यूकिन 6 और ट्यूमर नैक्रोसिस फैक्टर जोड़े है ड्यूरिंग इन्फ्लामेशन प्रोड्यूस होने स्टार्ट हो जाने। ठीक है, तो हुण ये वाले फैक्टर्स जोड़े है ये की करता है कैटाबोलिज्म एक्टिविटी नू इनक्रीज़ कर देने और एनाबोलिज्म एक्टिविटी नू डिक्रीज़ कर देने। और आप डिस्कस किया सी एनाबोलिज्म एक्टिविटी डिक्रीज़ होगी तो वो की होएगा न्यू कार्टिलेज जोड़ा है प्रोड्यूस होना स्टॉप हो जाएगा और जोड़ा ओल्ड कार्टिलेज है वो डीजनरेशन होनी इंक्रीज़ हो जाएगी, कार्टिलेज की ब्रेकडाउन होनी जी वो इंक्रीज़ हो जाती है। सो इन्फ्लामेशन के जोड़े फैक्टर्स प्रोड्यूस हो रहे हैं इंटरल्यूकिन 1, 6 एंड ट्यूमर नैक्रोसिस फैक्टर, इन्होंने की करना कैटाबोलिज्म एक्टिविटी नू इंक्रीज़ कर देना, कार्टिलेज की ब्रेकडाउन जी हैगी वो होनी स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो वो की होएगा बोन्स के फ्रिक्शन होएगी और जी ऑस्टियोआर्थराइटिस की कंडीशन अपने को प्रेजेंट हो जाएगी। ठीक है, नैक्सट है जॉइंट इंजरी। जॉइंट इंजरी मीनस कोई इंजरी हो रही है जो कोई मैकेनिकल स्ट्रैस और ओबेसिटी की कंडीशन है वो करके भी की होएगा अपने को इन्फ्लामेशन की प्रोसैस जी हैगी वो इंक्रीज़ हो जाएगी और इन्फ्लामेशन की प्रोसैस की करेगी सेम कैटाबोलिज्म की एक्टिविटी इंक्रीज़ करेगी। अदर फैक्टर्स आ गए लाइक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर, जेनेटिक डिसऑर्डर्स और सब मैडिकेशंस ये भी की करती हैं अपने को ऑस्टियोआर्थराइटिस की कंडीशन इनक्रीज़ करते हैं, कैटाबोलिज्म एक्टिविटी इनक्रीज़ करते हैं। ठीक है, नैक्सट अपने को आ गया पैथोफिजियोलॉजी ऑफ ऑस्टियोआर्थराइटिस। ठीक है, पैथोफिजियोलॉजी ऑफ ऑस्टियोआर्थराइटिस। सो पहला आप डिस्कस कर लेने इधरों नोट्स विचों। ठीक है, सो ऑस्टियोआर्थराइटिस दे विच की हो रहा अपने को आप डिस्कस किया कि आर्टिकुलर कार्टिलेज जोड़ा है। ठीक है, आर्टिकुलर कार्टिलेज की होगी डैमेज होनी स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, ड्यू टू एनी फैक्टर लगा लो, ड्यू टू इंजरी। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट पैथोफिजियोलॉजी ऑफ ऑस्टियोआर्थराइटिस। सो ड्यू टू etiological फैक्टर लाइक फ्रैक्चर और बोन फ्रैक्चर और बोन इंजरी। ठीक है, सो वो अपने को की होएगा आर्टिकुलर कार्टिलेज जोड़ा है मेनली रिस्पॉन्सिबल है अपने को साइनोवियल जॉइंट्स बोन्स साइनोवियल जॉइंट्स की मूवमेंट लई। ठीक है, तो ऑस्टियोआर्थराइटिस की कंडीशन की हो रहा आर्टिकुलर कार्टिलेज जोड़ा है वो डैमेज हो गया। ठीक है, सो आर्टिकुलर कार्टिलेज मेनली किस चीज़ तो अपने को फॉर्मेशन हो रही सी कॉन्ड्रोसाइट सेल्स तो। ठीक है, सो आप पीछे डिस्कस किया सी ਜਿਹੜੇ कॉन्ड्रोसाइट्स है। ठीक है, कॉन्ड्रोसाइट्स नू कौन सराउंड कर रहा सीगा मैट्रिक्स। ठीक है, मैट्रिक्स दे विच आपां डिस्कस किया सी कि ग्लाइकेंस और टाइप 2 कोलेजन सीगे जिहड़े इलास्टिसिटी मेनटेन करन च हैल्प करते हैं बोन दी। ठीक है, कॉन्ड्रोसाइट्स दे विच मैट्रिक्स दे विच की कंटेन हुंदा द मैट्रिक्स ऑफ द कॉन्ड्रोसाइट कंटेन्स प्रोटियोग्लाइकेंस एंड द टाइप 2 कोलेजन। These two factors are mainly responsible for the elasticity and provide the high tensile strength to the बोन। ठीक है, बट हुण ऑस्टियोआर्थराइटिस दे विच की होएगा कि आर्टिकुलर कार्टिलेज डैमेज हो रहा। ठीक है, तो उस कंडीशन दे विच की होएगा अपने को हुण एक नंबर ते की हो गया कि प्रोटियोग्लाइकेंस जिहड़े हैगे इन्हां दा नंबर
की हो जाएगा रिड्यूस हो जाएगा, प्रोटियोग्लाइकेंस का प्रोड्यूस होना डिक्रीज़ हो जाएंगे। ठीक है, एक ही कर रहे थे इलास्टिसिटी रिड्यूस मेनटेन कर रहे थे, बट इतने प्रोटियोग्लाइकेंस का नंबर की हो गया रिड्यूस हो गया। ठीक है, और ऑन द अदर हैंड अपने कोल की हो रहा है टाइप 2 कोलेजन्स भी की करते सी इलास्टिसिटी मेनटेन कर रहे सी नॉर्मल कंडीशनस। ठीक है, बट इत्थे की आ ऑस्टियोआर्थराइटिस की कंडीशन दे विच की होएगा टाइप 2 कोलेजन प्रोड्यूस होने की जगह अपने कोल की हो गया इन स्पाइट ऑफ दैट अपने इट विल स्टार्ट मेक डिफरेंट काइंड ऑफ द कोलेजन्स। ठीक है, टाइप 2 कोलेजन की जगह अपने को टाइप 1 कोलेजन प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो गया, डिफरेंट काइंड का कोलेजन प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो गया ऑस्टियोआर्थराइटिस दे विच टाइप 1 कोलेजन। ठीक है, तो हुण की होया प्रोटियोग्लाइकेंस का नंबर भी रिड्यूस हो गया, टाइप 2 की जगह टाइप 2 कोलेजन की जगह अपने को किया गया टाइप 1 कोलेजन। ठीक है, तो हुण ये दोनों की करनगे फैक्टर इलास्टिसिटी नूं की करदे हैं बोन दी रिड्यूस कर देना। इट रिड्यूस द इलास्टिसिटी ऑफ द बोन अलॉन्ग विद द ब्रेकडाउन ऑफ बोन। ठीक है, इलास्टिसिटी भी रिड्यूस होगी और बोन की जड़ी हैगी है ब्रेकडाउन होनी भी स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, हुण जदों टाइम पास होएगा, ठीक है, टाइम पास होने नाल की होएगा उहदे नाल की होएगा ब्रेकडाउन हो रही है। ठीक है, जिमें जिमें ब्रेकडाउन होगी, ठीक है, तो आपां इस उहदे लई जिहड़ी कंडीशन अपने कोल आ जांदी है इत्थे एपोप्टोसिस। ठीक है, एपोप्टोसिस मीनस की आ अपने कोल प्रोग्राम्ड सैल डैथ। मीनस जिमें जिमें टाइम पास हो रहा ऑस्टियोआर्थराइटिस की कंडीशन जिहड़ी हैगी आ इनक्रीज हो रही है। ठीक है, बोन अपने कोल साइनोवियल जॉइंट दे विच एपोप्टोसिस की कंडीशन जिहड़ी हैगी आ वो प्रेजेंट होगी। एपोप्टोसिस मीनस प्रोग्राम्ड सैल डैथ। ठीक है, मीनस हौली हौली की होएगा जिहड़े कॉन्ड्रोसाइट्स ने, ठीक है, नॉर्मल सैल्स ने उन्होंने कंटीन्यूएशन दे विच डैथ होनी स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, सो इहदे नाल की होएगा कंटीन्यूअसली रिड्यूस द इलास्टिसिटी ऑफ द बोन। कंटीन्यूअसली की होएगा बोन की इलास्टिसिटी जिहड़ी हैगी है वो रिड्यूस हो जाएगी, बोन हैगी है जिहड़ी वो होर सॉफ्ट हो जाएगी, वीक हो जाएगी बोन। ठीक है, जिमें जिमें वो बोन वीक होएगी सॉफ्ट होएगी, ठीक है, तो वो कुछ पार्ट्स जिहड़े हैगे आ वो ब्रेक डाउन होके साइनोवियल फ्लूइड दे विच ऐड होने स्टार्ट हो जाने। जिहड़ी अपने कोल साइनोवियल स्पेस सीगी, ठीक है, वो पार्ट्स की जिहड़ी ब्रेक डाउन हो रही है बोन्स की, वो पार्ट्स की फ्लेक्स निकल के कित्थे ऐड होनियां स्टार्ट हो जानियां साइनोवियल स्पेस दे विच। ठीक है, और वो जिहड़े फ्लेक ऑफ, ठीक है, उन्होंने आपां माइस बोलते हैं। ठीक है, जॉइंट माइस। ठीक है, मीनस जिहड़ा अपने कोल इत्थे साइनोवियल स्पेस सीगा, ठीक है, इत्थों बोन कार्टिलेज जिहड़ा हैगा ब्रेक डाउन होके वो साइनोवियल स्पेस दे विच की होएगा ऐड होना स्टार्ट हो जाएगा। उहदियां फ्लेक ऑफ्स जिहड़ियां हैगियां साइनोवियल स्पेस दे विच फिल होनियां स्टार्ट हो जाणगियां। ठीक है, तो उन्होंने आपां की बोलते हैं जॉइंट माइस। ठीक है, हुण जिवें जिवें जॉइंट माइस प्रोड्यूस होणगे उहदे नाल की होएगा, आपां पिछे डिस्कस कीता सी साइनोवियल फ्लूइड हैगा जिहड़ा वो टाइप ए सैल प्रोड्यूस करदा। टाइप ए सैल्स दा फंक्शन की सीगा, इट हैल्प टू रिमूव द डेब्रिस। सो एज जिमें जिमें हुण फ्लेक्स ऑफ उत्थे माइस जिन्ने ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहे हैं, ठीक है, तो वो रिएक्शन दे विच की होएगा अपने कोल टाइप ए सैल जिहड़े हैगे ज़्यादा प्रोड्यूस होने स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, साइनोवियम दे विच इन साइनोवियम अटैम्प्ट टू रिमूव द डेब्रिस। और डेब्रिस रिमूव करने लिए अपने कोल टाइप ए सैल्स जिहड़े हैगे आ इनक्रीज हो गए। ठीक है, नाल ही की होएगा इम्यून सिस्टम जिहड़ा हैगा वो एक्टिवेट हो जाएगा। ठीक है, इम्यून सैल्स एक्टिवेट हो गए हैं, लिम्फोसाइट्स आ जाएंगे उत्थे। ठीक है, ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਡੈਬਰੀਜ਼ ਆ ਗਏ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਡੈਬਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਰਿਮੂਵ ਕਰਨ ਲਈ ਲਿੰਫੋਸਾਈਟਸ ਆ ਗਿਆ, ਮੈਕਰੋਫੇਜਿਸ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਆਪਣਾ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਐਕਟੀਵੇਟ ਹੋਏਗਾ, ਲਿੰਫੋਸਾਈਟਸ ਆ ਗਏ, ਮੈਕਰੋਫੇਜਿਸ ਆ ਗਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਸਾਈਟੋਕਾਈਨਿਨ ਪ੍ਰੋड्यूस ਹੋਣਾ ਸਟਾर्ट ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ठीक है, इट प्रोड्यूस द साइटोकाइन प्रोड्यूस होएगा, उहदे नाल की होएगी इन्फ्लामेशन इंक्रीज होएगी। ठीक है, सो इन्फ्लामेशन इट कॉजेज द साइनोवाइटिस। इन्फ्लामेशन होएगी जॉइंट दोनों आपां की बोलांगे साइनोवाइटिस। ठीक है, साइनोवियम लेयर दी की होगी इन्फ्लामेशन होगी। ठीक है, इट ऑल्सो कॉज द fibrillation from crack and collapse and used to be smooth articular surface। मीनस जिहड़ी आर्टिकुलर स्पेस आ होर ज़्यादा उहदे विच कोलैप्स और क्रैक्स आने स्टार्ट हो जाएंगे ड्यू टू इन्फ्लामेशन प्रोसेस। ठीक है, सो नैक्सट अपने कोल की आ जाएगा जिमें जिमें टाइम पास होएगा। ठीक है, कंटीन्यूअस उत्थे अपने कोल आर्टिकुलर कार्टिलेज उहदी डैमेज होई जा रही है, जिहड़ी बोन आ कंटीन्यूएशन दे विच उहदी जिहड़ी फ्रिक्शन है इंक्रीज हो जाएगी। बोन आपस दे विच फ्रिक्शन होके रब होके की होएगा। ठीक है, ईच अदर इज़ नोन एज। ठीक है, हुण जिमें जिमें यह कार्टिलेज डैमेज होएगा, ठीक है, बोन फ्रिक्शन ज़्यादा होएगी। ठीक है, एपोप्टोसिस तो बाद अपने को एक कंडीशन आ जाती है बोन
ਇਬਰੀਨੇਸ਼ਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬੋਨ ਇਬਰੀਨੇਸ਼ਨ ਮੀਨਸ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਬੋਨ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਇਨਫਲਾਮੇਸ਼ਨ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਹੋਏਗੀ, ਬੋਨ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਬ੍ਰੇਕਡਾਊਨ ਹੋਣੀ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਬੋਨ ਇਬਰੀਨੇਸ਼ਨ ਮੀਨਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆਫ ਬ੍ਰੇਕਡਾਊਨ ਆਫ ਦਾ ਬੋਨ ਡਿਊ ਟੂ ਇਨਫਲਾਮੇਸ਼ਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈਗਾ ਆਸਟੀਓਫਾਈਟਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਆਸਟੀਓਫਾਈਟ ਤੁਹਾਡੀ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਇਗਰਾਮ 'ਚ ਸ਼ੋ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਸਟੀਓਫਾਈਟਸ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਸੀਗਾ ਆਸਟੀਓਫਾਈਟਸ, हाँ ऑस्टियोफाइट्स, ठीक है। ऑस्टियोफाइट्स मीनस की होएगा जो बोन जड़ी हैगी आ ब्रेकडाउन होनी स्टार्ट होगी बोन की, बोन इत्थों की होएगा एक्सटेंड हो जाएगी, ठीक है। एक्सटेंड होके की होएगा, बोन जड़ी हैगी आ वो एक्सटेंड हो जाएगी, लाइक इत्थों तक बोन वध गई, ठीक है। इधरों भी जड़ी हैगी आ बोन एक्सटेंड हो गई है, ठीक है। उहदे नाल की होएगा जिहड़े बोन साइनोवियल जॉइंट आ वो वाइड हो जाएंगे, ठीक है। पहला नालों की होएगा होर ज़्यादा वाइड होने स्टार्ट हो जाएंगे। ऑस्टियोफाइट्स मीनस जॉइंट्स आर मोर वाइडर, ठीक है। बोन जड़ी हैगी एक्सटेंड हो जाएगी, ठीक है। उहदे नाल की होएगा जॉइंट्स जड़े हैगे आ होर ज़्यादा वाइडर हो जाएंगे, ऑस्टियोफाइट की कंडीशन प्रेजेंट होगी। दिस इज़ ऑल अबाउट द पैथोफिजियोलॉजी, ठीक है। और थोड़ी बुक दे विच जिहड़ी पैथोफिजियोलॉजी दित्ती हुई है, ठीक है, तुसीं अगर ये फॉलो करनी है फॉलो कर लियो, ठीक है। ये क्या ड्यू टू etiological फैक्टर्स कॉन्ड्रोसाइट रिस्पॉन्स कॉजेज द रिलीज ऑफ साइटोकाइनिन, ठीक है। आप डिस्कस किया कि ठीक है उत्थे इन्फ्लेमेशन की प्रोसैस स्टार्ट हो गई सी, ठीक है। लिम्फोसाइट्स मैक्रोफेजेस आ गए सी, उन्होंने की करना साइटोकाइनिन जड़े है प्रोड्यूस करने स्टार्ट कर दें। साइटोकाइनिन की करेंगे स्टिमुलेट एंड रिलीज द प्रोटियोलिटिक एंजाइम्स, ठीक है। लॉस ऑफ द कोलेजन एंड प्रोटियोग्लाइकोजेंस फ्रॉम द कार्टिलेज, ठीक है। ये भी आप डिस्कस कर लिया कि कार्टिलेज जड़े है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ प्रोटियोग्लाइकेंस ਦੇ कोलेजन ਦਾ अमाउंट ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਰਿਡਿਊਸ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੋਨ ਦੀ ਇਲਾਸਟਿਸਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਰਿਡਿਊਸ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ कार्टिलेज बिकम येलो और ब्राउनिश ग्रे एंड लॉसेज इट्स टेंसाइल स्ट्रेंथ। नेक्स्ट है डेवलपमेंट ऑफ द सरफेस अल्सरेशन एंड फिशर्स इज डीपर लेयर ऑफ द कार्टिलेज, ठीक है। हुण कार्टिलेज आप कार्टिलेज दे विच कोलेजन प्रोटियोग्लाइकोजेंस जिहड़े हैगे वो प्रोड्यूस होने रिड्यूस हो गए हैं, ठीक है। उहदे नाल जिहड़ी बोन दी इलास्टिसिटी रिड्यूस हो गई है, ठीक है। टेंसाइल स्ट्रेंथ रिड्यूस हो गई है, फ्रिक्शन इंक्रीज हो जाएगी। सो कार्टिलेज दे विच की होएगा, फिशर्स और अल्सरेशन जिहड़ी हैगी आ वो प्रोड्यूस होनी स्टार्ट हो जाएगी, वो डेवलपमेंट होनी स्टार्ट हो जाएगी। कार्टिलेज मीनस डैमेज होना स्टार्ट हो गया, ठीक है। इत्थे नैक्सट है लॉस ऑफ द लार्ज एरिया ऑफ द कार्टिलेज एरिया लॉस हो जाएगा। सो एज अ रिजल्ट बोन इज़ एक्सपोज एंड सिस्ट डेवलप इन द बोन, ठीक है। हुण जिन्नी ज़्यादा मूवमेंट होएगी, टाइम जिमें जिमें पास होएगा, बोन दे विच फ्रिक्शन इंक्रीज होएगी, और जिन्नी ज़्यादा फ्रिक्शन होएगी उन्नी बोन दी जिहड़ी हैगी आ ओहदे विच बोन जड़ी हैगी आ डैमेज होनी स्टार्ट हो जाएगी, ब्रेक होनी स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। और जड़ी पेनफुल कंडीशन होएगी वो राइज होनी स्टार्ट हो जाएगी। दिस इज़ द पैथोफिजियोलॉजी ऑफ द ऑस्टियोआर्थराइटिस। सो नेक्स्ट अपने को आ गया ओके, अगर आप ऑस्टियोआर्थराइटिस और रेमेटॉइड अर्थराइटिस द जिहड़े आप सिम्पटम्स है अगर वो डिस्कस करिए, ठीक है, तो उहदे विच दोनों विच डिफरेंस की है बेसिकली ऑस्टियोआर्थराइटिस दी पेन और रेमेटॉइड अर्थराइटिस दी, ठीक है। सो पहले आप क्लीनिकल मैनिफेस्टेशन डिस्कस कर लेना सिंपल ऑस्टियोआर्थराइटिस का, ठीक है। सो क्लीनिकल मैनिफेस्टेशन की है जॉइंट पेन होएगी, ठीक है। ओबवियसली आप की कीता सी बोन की जिहड़ी आउटर लेयर है पेरिओस्टियम और ब्रेकडाउन होनी स्टार्ट हो गई है, तो उहदे च अपने कोल की पिया सी नर्व पेन रिसेप्टर्स पे, ठीक है। उहदे करके की होएगा जॉइंट पेन प्रेजेंट होगी, जॉइंट पेन ड्यूरिंग एंड आफ्टर मूवमेंट लोकलाइज टू अफेक्ट जॉइंट्स वेट एंड वेट wearing joints। नेक्स्ट आ गया पेन इंक्रीजेज विद द एक्टिविटी एंड डिक्रीजेज विद रेस्ट, ठीक है। जी पेन है जिमें जिमें एक्टिविटी होएगी, ठीक है, उवें उवें पेन की होएगी इंक्रीज होएगी, विद एक्टिविटी पेन इंक्रीज होएगी और रेस्ट कंडीशन दे विच पेन डिक्रीज हो जाएगी। पैरास्थीजिया मीनस नमनेस और टिंगलिंग प्रेजेंट होएगी जॉइंट्स दे विच, वीक मसल वीकनेस प्रेजेंट होएगी, वेस्टिंग अराउंड द अफेक्टेड जॉइंट्स, joint swelling, synovitis, warmth, effusion, synovial thickening present होएगी, joint tenderness and soreness, joint stiffness in the morning or after rest, okay, joint stiffness present होएगी in the morning, ठीक है। आफ्टर रेस्ट जी स्टिफनेस हैगी वो रिमूव हो जाएगी, ठीक है। जॉइंट स्टिफनेस प्रेजेंट होएगी इन द मॉर्निंग, जो पेशेंट मीनस वेकअप मीनस उठेगा मॉर्निंग दे विच, ठीक है, 1 आवर दे लई की होएगा उहदे
जॉइंट पेन स्टिफनेस प्रेजेंट होएगी, जॉइंट पेन प्रेजेंट होएगी, ठीक है। और रैमेट ऑस्टियोआर्थराइटिस दे विच, ठीक है, लैस दैन 1 आवर प्रेजेंट होएगी मॉर्निंग दे विच, ठीक है। और बेसिकली इत्थे डिफरेंस आ जाएगा रैमेटॉइड आर्थराइटिस दे विच की होएगा, जिहड़ी जॉइंट स्टिफनेस होएगी रैमेटॉइड आर्थराइटिस दे विच मोर दैन 1 आवर होएगी, इत्थे की होएगी लैस दैन 1 आवर, ठीक है। और रैस्ट दे नाल की होएगी, ये वाली पेन जिहड़ी हैगी आ ओह पेन रिलीज़ हो जाएगी, बट ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ पेनफुल कंडीशन प्रेजेंट होंगी है, ठीक है, पेनफुल स्वेलिंग प्रेजेंट होएगी, ठीक है। और ये की होएगा मतलब ये स्वेलिंग घट होएगी रैमेटॉइड आर्थराइटिस से कंपैरेटिवली। नैक्सट है लॉस ऑफ जॉइंट फ्लैक्सीबिलिटी, रिड्यूस रेंज ऑफ जॉइंट मूवमेंट्स। नैक्सट है ग्रेटिंग सेंसेशन एंड क्रिपाइटिस में बी प्रेजेंट ड्यूरिंग द मूवमेंट। बोनी स्वेलिंग एंड डिफॉर्मिटी ड्यू टू ऑस्टियोफाइट्स, ठीक है। बोन स्वेलिंग जी प्रेजेंट होगी वो किस करके प्रेजेंट होगी, ऑस्टियोफाइट्स, सो ऑलरेडी आप डिस्कस कर लिया पीछे, ठीक है। सो इन द फिंगर दिस प्रेजेंट एज द स्वेलिंग इन द डिस्टल इंट्राफ्लेंजिस जॉइंट, बर्डन्स नोड्स और स्वेलिंग एट द प्रॉक्सिमल इंटरफ्लेंजिस जॉइंट, बोकार्ड्स नोड्स, ठीक है। तो हुण ऑस्टियोआर्थराइटिस दे विच की होएगा, ठीक है, आप ये कर रहे हैं इंटरफ्लेंजिस जिहड़ी होएगी स्वेलिंग प्रेजेंट होएगी, ठीक है, प्रॉक्सिमल और एरिया दे विच जिहड़ा हैगा इत्थे इंटरफ्लेंजिस जॉइंट्स दे विच जिहड़ी हैगी इन्फ्लामेशन प्रेजेंट होएगी, ठीक है। और होर मेन आप जिहड़े जॉइंट्स डिस्कस किए सी, हिप जॉइंट हो गया, ठीक है, नी जॉइंट हो गया, बेसिकली जिथे अपने को ऑस्टियोआर्थराइटिस की कंडीशन प्रेजेंट है। नैक्सट है अपने को डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन, सो फिजिकल एग्जामिनेशन रिव्यूज टेंडरनेस एंड एनलार्ज अफेक्टेड जॉइंट, ठीक है। एक तो फिजिकल एग्जामिनेशन तो अपन पता चल जाएगा पेशेंट की, ठीक है। नैक्सट एक्सरे शोज नैरोइंग ऑफ द जॉइंट स्पेस एंड ऑस्टियोफाइट्स एट द जॉइंट मार्जिनस एंड ऑन द सबकॉन्ड्रल बोन, ठीक है। मीनस मैंने लगता है काफ़ी डिस्कस हो गया, ठीक है। एक्सरे दे विच अपन की हो गया ऑस्टियोफाइट्स प्रेजेंट होंगे, ऑस्टियोफाइट्स ऑलरेडी आप डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। इतने डायग्राम शो किया है ऑस्टियोफाइट्स की हो गया, बोन देखो एक्सटेंड हो गया, ठीक है। एक्सटेंड होने करके की होएगा जो बोन जॉइंट है वो वाइड हो जाने, ठीक है। सो नैक्सट आ गया CT स्कैन एंड MRI मे बी नेसेसरी टू गेट ए बेटर लुक एट द जॉइंट एंड द सराउंडिंग टिश्यूज। ब्लड टेस्ट डन टू इवैल्यूएट द प्रेजेंस ऑफ द hyaluronic acid, erythrocyte sedimentation rate, joint aspiration for the joint fluid or synovial fluid for analysis. These all are the diagnostic evaluation. Next अपने को आ गया मेडिकल मैनेजमेंट। सो मेडिकल मैनेजमेंट दे विच बेसिकली आप की करते फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट दे विच पेशेंट नूं जिहड़ी पेन हो रही है, ठीक है, ऑस्टियोआर्थराइटिस की कंडीशन दे विच मेन आप डिस्कस किया फ्रिक्शन बोन दे विच इंक्रीज़ हो गया, आर्टिकुलर कार्टिलेज डैमेज हो गया, बोन्स की फ्रिक्शन इंक्रीज़ हो गया, ठीक है। तो उस कंडीशन दे विच की होएगा पेशेंट नूं पेन हुंदी है, ठीक है। सो फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट दे विच आप की करना पेन जिहड़ी हैगी पेशेंट की वो रिड्यूस करनी है। प्लस आप की कहा सीगा इन्फ्लामेशन की कंडीशन प्रेजेंट है, आप ट्राई करांगे इन्फ्लामेशन रिड्यूस करने के लिए, ठीक है। फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट दे विच की करना पेन रिड्यूस करनी है पेशेंट की, इन्फ्लामेशन आप रिड्यूस करनी है पेशेंट की, ठीक है। दैन हाइलोयूरोनिक एसिड दे इंजैक्शनस दे सकते हैं आप, ठीक है, क्योंकि आप पिछले डिस्कस किया सी कि हाइलोयूरोनिक एसिड जो है वो डिक्रीज़ होएगा ये, ठीक है। तो हाइलोयूरोनिक एसिड के इंजैक्शन दे सकते हैं, वो सम टाइम थोड़ी की होएगा सम टाइम जी कंडीशन हैगी वो मीनस वो पेनफुल कंडीशन हैगी वो रिलीव हो जाएगी, ठीक है। बट बेसिकली ये जोड़ा ट्रीटमेंट है वो सर्जरी है, जॉइंट रिप्लेसमेंट आप करते हैं, ठीक है। नी जॉइंट दे विच अगर ऑस्टियोआर्थराइटिस है तो आप जॉइंट रिप्लेसमेंट नी रिप्लेसमेंट करते हैं ये आप। सो अकॉर्डिंग टू योर बुक, ठीक है, फर्स्ट आ गया एसिटामिनोफेन आ गया, ठीक है, इट कैन रिलीव द पेन बट इट डजंट रिड्यूस द इन्फ्लामेशन, ठीक है। नैक्सट अपने को आ गया नॉन स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स, नसेड्स आप देने हैं टू रिड्यूस द इन्फ्लामेशन एंड रिलीव पेन, ठीक है। और ये एग्जाम्पल आ गई वेफ्रोपेन आ गई, नेप्रोजन आ गया, ठीक है, नॉन स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स। नैक्सट आ गया नारकोटिक्स एंड सेंट्रल एक्टिंग एजेंट्स, ठीक है। ये ट्रेमाडोल आ गया, ट्रेमाडोल इज़ अ प्रिस्क्रिप्शन पेन reliever and synthetic opioid that is sometimes prescribed when over the counter medication don't provide sufficient relief, it works through the central nervous system to achieve its effect, ठीक है। सो फर्स्ट आप एसिटामिनोफेन दे रहे सी टू रिड्यूस द पेन, नसेड्स आ गए टू रिड्यूस द इन्फ्लामेशन, नारकोटिक्स के ट्रेमाडोल आ गया, ठीक है, ओवर द काउंटर ड्रग आप दे सकते टू रिड्यूस द पेन। नैक्सट आ गया COX-2 inhibitors where the paracetamol or the topical
NSAIDs are ineffective for the pain relief for the people with osteoarthritis, then substitution with oral COX-2 inhibitor should be considered. Next आ गया अपने को topical medication, counter irritants, salicylate and सेपासिन ऑइंटमेंट यूज टू रिलीव द पेन. ठीक है, ऑइंटमेंट्स आ गया. नेक्स्ट आ गया विस्को सप्लीमेंट्स. इंजेक्शन ऑफ हाइलोयूरोनिक एसिड डायरेक्टली इनटू द नी जॉइंट कैन रिलीव पेन एंड प्रोवाइड लुब्रिकेशन फॉर शॉर्ट टर्म इन सम पीपल विद ऑस्टियोआर्थराइटिस. सो बेसिकली जी आप दिने एक तो पेन रिड्यूस करनी है पेशेंट की, इन्फ्लामेशन रिड्यूस करनी है. पेन रिड्यूस करने लिए आप दिता पेशेंट को एसिटामिनोफेन. इन्फ्लामेशन रिड्यूस करने लिए NSAIDs आ गए अपने को. ठीक है, नैक्सट अपने को की आ जाएगा हाइलोयूरोनिक एसिड आ जाएगा. ठीक है, आप जिहदे इंजैक्शन दिंदे पेशेंट को की होगा पेन रिलीव होंगी है प्लस लुब्रिकेशन प्रोवाइड करेगा. ठीक है, दिस इज़ द मेडिकल मैनेजमेंट फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट ऑफ द ऑस्टियोआर्थराइटिस. नैक्सट आ गया कंजरवेटिव ट्रीटमेंट. ठीक है, ये अपने को नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट है. ठीक है, एक्चुअली जो ऑस्टियोआर्थराइटिस है आप ये मेन पेशेंट को बोलते हैं वेट रिड्यूस करने लिए बोलते हैं. ठीक है, सो आप पेशेंट को वेट रिड्यूस करने लिए एडवाइस करना. ठीक है, और मॉडरेट एक्सरसाइजेस लिए आप एडवाइस कर सकते हैं पेशेंट को. और कुछ फिजिकल थैरेपीज़ है. ठीक है, मीनस वो एक्सरसाइजेस वगैरह आ जाती ने. ठीक है, वो आप पेशेंट को एडवाइस करनी ने. ठीक है, नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट दे. ठीक है, थोड़ी बुक के अकॉर्डिंग की एक्सरसाइज दसिया इन्होंने. ठीक है, जेंटल एक्सरसाइजेस आप पेशेंट को प्रिस्क्राइब कर सकते हैं. वेट रिड्यूस करने लिए बोलना फॉर ओबीस पेशेंट. ठीक है, नैक्सट ब्रेसिस और शू इंसर्ट्स आ गए हैं. ये करना कंसीडर trying splints, braces, shoe insert or other medical devices that can help reduce pain. These devices can immobilize or support joint to help knee pressure off it. Okay, next again use of the supportive or the assistive devices. हॉट एंड कोल्ड एप्लीकेशंस आ गई हैं टू रिलीव द पेन. ठीक है, सो दिस ऑल आर द कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट. नैक्सट अपने को आ गया सर्जिकल ट्रीटमेंट. सर्जिकल ट्रीटमेंट अपने को आ जाएगा जॉइंट रिप्लेसमेंट. इन जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी आर्थोप्लास्टी. ठीक है, सो सर्जन रिमूव्स डैमेज जॉइंट सरफेस एंड रिप्लेस दैम विद द प्लास्टिक एंड द मेटल devices called prosthesis. The hip and the knee joints are the most commonly replaced joints. So arthroplasty is the recommended to those patients who have severely restricted joint mobility and pain even during रेस्ट. ठीक है, आप पिछले डिस्कस किया कि ऑस्टियोआर्थराइटिस जी पेन है रेस्ट के नाल की होंदी है वो रिलीव हो जाती है. ठीक है, सो जॉइंट रिप्लेसमेंट आप किस पेशेंट की करते हैं जी कंडीशन ना बहुत ज़्यादा वर्स हो जाती है. ठीक है, बहुत ज़्यादा पेन पेशेंट को प्रेजेंट होएगी. ईवन रेस्ट से भी जी पेन हैगी रिलीव नहीं होगी तो उस कंडीशन के आप पेशेंट की जॉइंट रिप्लेसमेंट करते हैं. ठीक है, नैक्सट की ऑस्टियोटोमी. ये ड्यूरिंग अ सर्जिकल प्रोसीजर कॉल्ड एन ऑस्टियोमी. The surgeon cuts across the bone either above or below the knee to realign the leg. Osteotomy can reduce the knee pain by shifting body weight away from the worn out part of the knee. ओके, ये की करते हैं जो उस पार्ट से वेट पै रहा उस वेट को की कर दें रिमूव कर दें. ठीक है, सो बेसिकली जो सर्जिकल मैनेजमेंट के अपने को जॉइंट रिप्लेसमेंट आ जाएगा. ठीक है, जॉइंट रिप्लेसमेंट जोड़ा है आप परफॉर्म करते हैं. सो दैट्स ऑल अबाउट ऑस्टियोआर्थराइटिस.